Hello everyone, my name is Chandra Prabhakar and I am from Patna, Bihar, and I have done BTech from GIT Gunupur, and after that I have in teaching department, and my teaching experience is of more than 1.5 years. Okay, let's start then. Today our topic will be number system. In a number system we have a different type of a number. Now we will start from natural number. Okay, and natural number you always start from 1, 2, 3 and infinite. Okay, natural number is also called as the counting number. I hope you understand, and if you have any doubt then ask to me. Okay, but I will tell you one tricks and tips to learn to everyone easily. Okay, understand first. uh, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ काउंटिंग नंबर. हाउ? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 1 से लेकर 30 तक आप काउंट करो या आप काउंट करो, ठीक है, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 to 30, राइट? दे दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एज अ काउंटिंग नंबर. ओके, बिकॉज हम लोग कभी भी कोई काउंट करते हैं ना तो वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये हमारा नेचुरल चीज़ है. Second is a whole number. Whole number is denoted by capital W. Okay, and the whole number is a start from 0, 1, 2, 3, 4 to infinite. Okay, student, you can ask to me, ma'am, how I will learn? Both are a very confusing, natural number and whole number, because here it is start from the 1 and the whole number is start from the 0. Okay, but not an issue. I am here, then I will tell you one tricks and tips. Actually we know that अगर हम आपको काउंट करने के लिए बोलते हैं तो आप 1 से काउंट करते हो, राइट? बट होल नंबर में क्या होता है कि होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, राइट? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि होल द वर्ल्ड, राइट? तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं होल द वर्ल्ड. अगर मैं होल द वर्ल्ड बनाऊं तो वो हम लोग 0 से बनाते हैं. ये हमारा एक 0 शेप है, तो वो तो देन यू कैन से जस्ट 0. ठीक है, now it is a integer. Not integer, integer number, and it is always represented by capital Z. In an integer series we have a negative number and positive number and the 0. Okay, it means that integer means it will come from -1 to minus infinity and +1 to plus infinity and 0. 0 is also negative. 0 is also integer. 0 is not a positive integer and not a negative integer. Okay, hope you understand from here. Okay, then now we will comes from even number. Even number means I can say what the even number. Even number, it is divisible by 2 only. Okay, it is called as the even number. I can say 0, 2, 4, 6, 8. Okay, I will give one tip and tricks also. कोई भी नंबर में, ठीक है, अगर कोई भी नंबर में उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा तो वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा. ठीक है, लेट अस वन एग्जांपल. 2, 3, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. ओके, जब आप इसको आप रिकॉग्नाइज करोगे कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है तो आपको फाइंड करने में काफ़ी टाइम लग जाएंगे. ठीक है, तो आप ये ट्रिक से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो लास्ट में है जो यूनिट डिजिट नंबर है वो 2 है. इट मीन्स ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा. Now I come from odd number. Odd number, it means that it is not divisible by 2. Okay, it is a odd number. And let's a sixth
prime number. In a prime number we have a two factor only. Okay, जैसे I am giving a one example. Let's 2. Okay, ये 2 का सिर्फ 2 सॉरी ये जो 2 जो नंबर है ना, इसका सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं. एक 1 होता है, एक 2 होता है. ठीक है, ये एक जो 1 होता है वो तो सारे का प्राइम फैक्टर्स होता है, और जो 2 जो होता है वो हमारा जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर. बट अगर आपके पास, जैसे हम अगर कोई वैल्यू लेते हैं 4, ठीक है, अगर हम वैल्यू लेते हैं 4, तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 1, 2 एंड 4. मतलब ये मोर देन 2 वैल्यूज हो गया. अगर सिर्फ 2 वैल्यूज आया, जब 2 वैल्यूज आएगा, अगर हम किसी भी नंबर्स का अगर जब प्राइम फैक्टर करेंगे, जब 2 वैल्यूज आएंगे तो उसे कहा जाता है प्राइम नंबर. ठीक है, और अगर कोई ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम प्राइम फैक्टर करने के बाद मोर देन 2 वैल्यू आता है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. Next, we have start from rational number. In a rational number is always formed as a p by q. ठीक है, it means that it is always formed in the fraction form. Okay, p by q, but q is not equal to 0. It means that अगर आप कोई एग्जाम्पल्स लेते हो कि 5/0, ठीक है, तो 5/0 is never be a rational number because I know that it is a numerator, it is a denominator. So denominator is not equal to 0. It means that denominator is a form of q. Q is not equal to 0. So that's why it is not a rational number. Now we are coming from irrational number. Irrational number means it is also formed as a p by q. ठीक है, but इरेशनल नंबर उसे कहते हैं, इरेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, ना वो कभी वो नॉन टर्मिनेट होगा, ना वो रिपीट होगा. ठीक है, वो क्या होगा कि वो ऑलवेज चलते रहेगा. जैसे अगर आप मैं एक वैल्यू लेती हूँ 10/3, ठीक है, जब इसको आप डिवाइड कट करने का प्रयास करोगे तो ये कभी कट नहीं होगा. इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.33333. इट मीन्स दैट ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट चलते जा रहा है. ठीक है, इसका कोई हमारा इसका कोई एंड नहीं है. तो इट इज कॉल्ड एज द इरेशनल नंबर. ठीक है, और इरेशनल नंबर का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है पाई. ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14. ठीक है, और ये जो पाई की वैल्यू होती है 3.14, और जो इसकी जो वैल्यू होती है ना ये कंटिन्यू में चलती रहती है. इसकी कोई एंडिंग पॉइंट है नहीं. ठीक है, अगर जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, ऐसे वैल्यू जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द रियल नंबर. रियल नंबर मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ rational number and irrational number. It is called as the real number. Okay, hope I am completed my session today and hope you understand to all. If you have a doubt then ask to me. Okay, otherwise I will continue on next class. Thank you so much.